Good morning. Good morning, everybody. I hope I am audible. Will somebody please comment to confirm that I am audible? जोशी सर नमस्कार, ज्योति मैडम नमस्कार, वेद पाठक मैडम, दीपिका मैडम नमस्कार, मेंढकी सर नमस्कार, चौधरी मैडम, काळे मैडम नमस्कार. म्हणजे सगळ्यांचे कमेंट मला दिसत आहेत. कॅन यू प्लीज कमेंट? इथे कमेंट करतं का कोणीतरी, जेणेकरून मला कन्फर्म होईल की मला ऐकू येतोय माझा आवाज. हॅलो, will somebody comment? Okay, thank you Deepika ji. So good morning everybody. Here I am Dr. Prasad Pandkar. I am in front of you with this invitation from Dr. Deepa Kale madam and her team of Kriya Seri department, YMT Yerla Medical Trust, Ayurved College, Kharghar. And this is a small webinar of 2 lectures they have organized on the current situation of pandemic of COVID-19. I am here to present just this topic of COVID-19 pathophysiology and Ayurvedic perspective. So I guess it's 11 a.m. and let us start with this. As this is a Facebook Live and I am using Android device, I am not able to share all the slides, so I will be using the camera and I will be using the same camera to speak, and I will use the same camera for few important slides or few important figures. Those are very important. I will be switching over the screen. Thank you very much. So let us start with this. To start with this, at the outset, COVID-19 Ayurvedic pathophysiology. So is there need to understand Ayurvedic pathophysiology? This is the very basic question, because this is where we differ with homeopathy. In homeopathic medicine, there is same anatomy, same physiology, same pathology. Simply their pharmacopoeia differs and their medicine differs. But for each and every disease, we need to have Ayurvedic understanding of pathophysiology, without which we just can't go forward. And this is simply because we have our own anatomical principles, we have our own physiological principles, we have our own pharmacological principles. So this is the case where we differ from homeopathy, and that is why when we are countering with somewhat new kind of disease entity, this is our first job to understand or to interpret what it is in Ayurvedic terms of pathophysiology. So what is relevance of this physiology in COVID? Anybody can question. Anybody can simply question. Anybody can just say that this is a COVID, it's something situation that is to be dealt with by clinical people. And this is something to be done by Kai Chikitsa department. What is Ayurvedic physiology contributing here? What is the role of Ayurvedic physiology? Let me tell you, physiology is the basis of medicine. We all know that Nobel Prize of Medicine that is given, that is named as Nobel Prize in Medicine/Physiology. So that is how physiology forms the basis for pharmacology, it forms the basis for medicine and each and everything. Now what Ayurvedic physiology is going to offer in a very different way. How is Ayurvedic physiology unique, and what its uniqueness can be contributed to make some paradigm shift while dealing with these COVID situations. So there are 2 important things. One is host versus pathogen, and this concept in Ayurveda, how it is very unique. And another is host is considered at very different levels of abstraction. So एक तो पहली बात यह है कि होस्ट को इंपॉर्टेंस देना है या पैथोजन को इंपॉर्टेंस देना है. इसमें आयुर्वेद की विशेषता यह है कि वो होस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, पैथोजन को देता है लेकिन कम देता है. और दूसरी बात, होस्ट का विचार करते समय आयुर्वेद की अपनी एक परिभाषा है, दोष धातु मल, जो कि एक आज मॉडर्न मेडिसिन को पैराडाइम शिफ्ट ऑफर कर सकती है. सो दैट इज हाउ आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी हैज गॉट रोल इन कोविड. At the outset, let me tell you, when we speak about host versus pathogen, we all have seen this left side
genius of biology, Louis Pasteur. We have known about him. We have in our 4th standard or in our 7th standard, we were taught that it was Louis Pasteur who saw that bacteria first time under the microscope. It was Louis Pasteur who formed the foundation for whole microbiology, and how he also contributed as a foundation for the vaccination program and everything, and he is considered as father of immunology. We are much learned about Louis Pasteur, but at the same time, very unfortunately, what our education system don't teach us about the historical debate between seed versus oil. Like I'm speaking from Pune, and Pune is the capital of COVID, and we are speaking about COVID, and I'm speaking from Pune. So Pune was again a place for debate for so many historical debates. Gandhi versus Ambedkar. It was Agarkar versus Tilak. So in a similar fashion, this is a historical debate in the field of physiology, that it was Louis Pasteur who believed that external pathogen to be given importance, whereas at the same time, it was father of physiology, Clyde Barnard, who has given importance to the soil. वो पैथोजन जिस होस्ट में आके इन्वेड करने वाला है, उस होस्ट को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, was all the time debating Clyde Barnard, whereas Pasteur was giving importance to the external pathogen, and this was their classical debate. And few historians have noted that on his deathbed, Pasteur agreed that yes, Barnard had the point. The soil is equally important, rather soil is more important. But very unfortunately, this debate is not spoken about today, because the Pasteur's view that microbe is important and wash your hands for 10 times, go for the vaccination, go for the cleansing things. This has become the important thing simply because this is related with industry. Take it Dettol, the Reckitt Beckensur is US's top 10 companies. They are the makers of Dettol, they are the makers of Harpic, or any industry. Wash your hands for 10 times. ये बताने में इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस है, क्योंकि the product is to be sold. लेकिन आपका सॉइल, आपका होस्ट को मजबूत करो. आप रात को 9 घंटे नींद ले लो, अच्छी ले लो, रात को ही ले लो, because during sleep growth hormone gets secreted. During sleep there is a melatonin surge, and I was just 2 days before I was googling, I got one product, the integrated product, the hormone melatonin plus Tagar. There is a capsule in market. I saw it on Google. There is a capsule that contains melatonin hormone synthetic plus Ayurvedic herb Tagar. And there are publications that melatonin is proposed. Melatonin is proposed for better COVID outcomes. Why? Because a good sleep is very important. A good sleep will induce a growth hormone. It will induce, there are so many benefits of good sleep for immunology. So, but nobody is interested to tell you that have an 8-hour sleep, क्योंकि वो होस्ट से रिलेटेड है. लेकिन 10 टाइम हैंड्स को वॉश करो, और वैक्सीन आपको लेना पड़ेगा, और एंटीवायरल ये देखो हमने लाया है 4000 का एक इंजेक्शन, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज दैट इज देर आर कमर्शियल इंटरेस्ट इन इट. सो दैट इज हाउ दिस वॉज द हिस्टोरिकल डिबेट between Pasteur and Barnard, and it is host that is important. And when it comes to host, Ayurveda has got its unique concept that Ayurveda considers host at its own levels of abstraction. And what are those levels? We all are Vaidyas, or I guess there are interns, or I guess there are at least first year pass out students. So we all know that this level is dosha dushya. Dosh dhatuma lagni, that is what our level is. And what it is conventionally taught, the conventionally taught hierarchy is from down to up. It is in your genes, that is what we are told, that is what we are taught since decades. Then genes के level का ऊपर का level है proteins, फिर आता है pathways, फिर आता है subcellular mechanism, फिर आता है cell, फिर आता है tissue, फिर आता है organ, फिर आता है organism. This upward mechanism and this upward causation was taught to the whole world since decades. But now there are people who are proposing that it is not just upward one-way causation.
but there is a downward causation also. And this is a figure I have taken from the publication of Professor Dennis Nobel, who is presently faculty of physiology in Oxford. And what this image talks about downward causation. That it's not only, हमको बस यही पढ़ाया गया है कि cell is the structural and functional unit of the human body, या फिर थोड़ा updated बात करें तो genes. But that is not the case. The case is कि ये जो upper level of hierarchy है, ये भी downward causation करती है. So organs and tissues, they can directly, ये सबसे बड़ा arrow देखिए, organs and tissues, they can directly act on as a downward causation to the proteins and genes. In a similar way, proteins can affect genes. In a similar way, this downward causation goes at the level of from organ to the level of cell. So it is not cell to organ. It is organ to cell. It is tissues to cell. It is systems to cell. एंड ये जब हम देखते हैं तो हमारा आयुर्वेद में हम लोगों ने ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी को सूक्ष्म लेवल पे देखने का प्रयास तो किया ही है, लेकिन एट द सेम टाइम आवर लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आर समथिंग लाइक वी कॉल फंक्शनल एंटिटीज, दे आर दोषा, structural entities, they are dhatu, and their byproducts or subproducts or toxins, we call them as mala. As simple as that. So we have opted a way of classification that is quite broader, and this broader classification will stand upward. And this is the professor from Oxford who is saying that yes, this higher level hierarchy, this broader level of abstraction and classification is again going to cause effects at downward level also. So with these insights, the concept of dosh, dhatu, mal, agni can indeed offer a paradigm shift that is very important. So how Ayurveda is relevant in COVID situations, Ayurveda physiology is relevant in COVID situations, that is what I was speaking about. And then let us move to our contents. So what we will be speaking in this, we will be just touching, it's a 1 hour lecture, and I will be simply touching these things, that we'll see if there is any concept of infectious diseases in Ayurveda. If yes, how it differs. Then what about SARS-CoV-2? Then let us understand the immune pathology. Of course, Aniket sir is going to speak about immunology in COVID, but I will be simply touching it. Immune pathology stepwise. We will see pathology stepwise in lungs. What are the happenings in the lungs, we will see. Then how to interpret them in Ayurveda. What is its roga swabhava? How to make the diagnosis, and what are its prognostic markers. All those are much spoken, LDH and ferritin and D-dimer, all we are doing in our COVID wards. So that is what these prognostic markers we will be seeing, and at the end we will see the post-COVID syndrome. So I will be simply touching all the things. So if there is concept of infectious diseases in Ayurveda or not. So at the outset, as I had said, that Ayurveda has always believed in host-centric mechanism. Ayurveda has believed in host much more. At the same time, Ayurveda has got the concept of Krumi. And it is not only concept of Krumi where we are going to see infectious diseases in Ayurveda, but we need to see this infectious diseases in Ayurveda under Janapado Dhamsa. We need to see this under Jwara. We need to see this under Krumi. We need to see this even under the concept of Rutucharya. And one more thing is there, it will be coming in the next slide. So these are the things where we need to understand how COVID or how infectious disease to be dealt with. Now let us understand it one by one. Ayurveda has believed in more in the host. If you see the concept of Krumi, there are again of 4 types. We all know that Raktaj Krumi, Purishaj Krumi and all. But let me tell you that what is Ayurvedic treatment of Krumi? It is 3-phase treatment. Number 1 is Apakarshan. Krumi को actually बाहर निकालिए. आप अल्बेंडाजोल दिया, आपने कुछ बस्ती दे दिया करंज तेल का, Krumi actually बाहर आ गया. One is Apakarshan. Another is Prakriti Vighat. And third one
is again hetu specific thing. Third one thing is the Nidan Parivarjan. So just see how beautifully Ayurveda visualizes this concept of infectious diseases. So far as the treatment of Krumi or treatment of infectious diseases in Ayurveda is concerned, Krumi Chikitsa is 1/3 is to अपकर्षण, एक्चुअली कृमि को बाहर निकालना, लेकिन बाकी का 2/3 इज होस्ट स्पेसिफिक. आयुर्वेदिक 1/3 ट्रीटमेंट ऑफ कृमि इज पैथोजन सेंट्रिक, अपकर्ष, बट 2/3 ऑफ ट्रीटमेंट प्रकृति विघात. कृमि आपके शरीर में ना बन पाए इस हिसाब से आपके शरीर में कृमि विरोधी, अगर मधुर पदार्थों से बनता है तो आपके आहार में तिक्त, कटु, ये सभी चीजें होनी चाहिए, लाइक दैट. तो ये कॉन्सेप्ट है कि प्रकृति विघात का कॉन्सेप्ट, ये पूरा होस्ट सेंट्रिक है. एंड फिर आता है निदान परिवर्जन. आप इटियोपैथोजेनेसिस, इटियोलॉजी से आप 2 हाथ दूर रहिए, उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस लेनी है वो ले लीजिए. सो कृमि की भले ही कॉन्सेप्ट आयुर्वेद ने मानी है, कृमि हर द्रव्य है, एंड देन देयर आर प्लेथर ऑफ रिसर्च हैज गॉन. एक्टिविटी ऑफ निम्ब, एक्टिविटी ऑफ हरिद्रा, यू जस्ट गूगल, यू विल फाइंड कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई पे इसका काम है, फलाना बैक्टीरिया पे इसका काम है. एंटीवायरल ले लो, एंटीवायरल, हर चीज़ एंटीवायरल है. पाइपरिन पिपली में है, एंटीवायरल है. माका में वेडेलेक्टोन है, एंटीवायरल है. अपामार्ग में सैपोनिन्स होते हैं, उसमें कुछ एक्शन एंटीवायरल. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स की जिसकी एंटीवायरल, देखिए वायरल, एंटीवायरल इफिकसीज, यू विल गेट सो मेनी थिंग्स ऑन गूगल सिंपली बिकॉज कि लास्ट 2 decades वेयर ऑफ वायरल डिसीजेस. HIV वॉज द HIV एंड कैंसर, ये 2 चीजें. देखिए लास्ट 20-30 ईयर्स का रिसर्च अगर हम देखते हैं तो वो ज्यादातर किसको लेके हुआ है, व्हाट वेर आवर मेजर हेल्थ कंसर्न्स. वन वॉज कैंसर, एंड कैंसर इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ इम्यूनोलॉजी. देखिए कैंसर का इम्यूनिटी से बहुत घना संबंध है. रादर इम्यूनोथेरेपी आजकल वो लोग उसके लिए प्रपोज कर रहे हैं. आयुर्वेद में भी वैद्य कैंसर के लिए रसायन औषधि देता है, उसका भी फिजियोलॉजिकल बेसिस है. उसके लिए एक वॉरबर्ग इफेक्ट नाम की फेनोमेनन है, जिसमें कि आपकी सेल्स जो है वो प्रो कैंसरस सेल्स जो है वो सेल्स ग्लाइकोलाइसिस प्रिफर करती है. जो रूटीन एटीपी मैकेनिज्म है उससे एनर्जी लेने के बजाय आपकी वो सेल ग्लाइकोलाइसिस प्रिफर करती है. एंड दैट इज वाई वो ये जो सेल कैंसर सेल्स का पैटर्न है, यही पैटर्न आपको इम्यूनोलॉजी से भी रिलेट करता है. दैट्स वाई cancer and immunology are closely associated. And last 2 decades the major health concern was HIV. That's why there is a plethora of publication. आप कोई भी हर्ब को ले लो, उसका एंटीवायरल एफिकेसी एंड ऑल, बहुत कुछ लिटरेचर आपको वहां पे मिल जाएगा. सो यस, एंटीवायरल आयुर्वेद की हर्ब्स है क्या, एंटीबैक्टीरियल आयुर्वेद की हर्ब्स है क्या, हमको गूगल पे इसके एविडेंसेस मिलेंगे. लेकिन वो एविडेंसेस के साथ साथ हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी विजन क्या है. चरकाचार्य की कृमि की में विजन ये है कि वो 1/3 ही बात अपकर्षण की करते हैं, 1/3 बात प्रकृति विघात की करते हैं, और 1/3 बात निदान परिवर्जन की करते हैं. सो एक में इटियोलॉजी को महत्व दिया है, एक में पैथोजेनेसिस एक में होस्ट को महत्व दिया है, एंड एक में सिर्फ माइक्रोब को महत्व दिया है. सो फॉर एज इन्फेक्शियस डिसीजेस इन आयुर्वेद इज कंसर्न, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज ज्वर. और ज्वर में हमने देखा है कि ज्वर का आगंतु और निज, ये 2 टाइप्स है. उसमें भी इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है, जहां तक हम होस्ट की बात करते हैं, चरकाचार्य बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि भले ही आगंतुक ज्वर हो, बाद में उसमें दोषों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, बाद में अग्निदुष्टि हो जाती है, एंड इट बिकम्स निज. सो भले ही कोविड वायरस है, भले ही आपका फलाना बैक्टीरिया है, उससे हुई संप्राप्ति आगंतुज है, लेकिन चरकाचार्य इज प्रिटी क्लियर कि दैट आगंतु थिंग्स लैटर कन्वर्ट्स इनटू निज, एंड देन इट लीड्स टू सिस्टेमिक इन्फेक्शंस. सो सिस्टेमिक इट्स मैनिफेस्टेशंस. सो ज्वर की जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमको इन्फेक्शन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन का पहला सिम्टम ही ज्वर है. सो आयुर्वेद में हमने देखा है बहुत सारे ज्वर के प्रकार है, सन्निपात के प्रकार है. रक्तष्टिवी सन्निपात है जिसमें रक्त की उल्टी होती है, वो इबोला के साथ मैच करेगा. देन देर इज संदिग्ध सन्निपात है, वो चिकनगुनिया से मैच करता है क्योंकि उसमें संधियों में वेदना होती है.
सो वैसे ही श्वसन सन्निपात आया है, कर्कटक सन्निपात आया है, जो कि रेस्पिरेटरी कंपोनेंट से मैच करते हैं। सो इस हिसाब से ज्वर में हमको इन्फेक्शियस डिसीज ढूंढने पड़ेंगे, विष में हमको ढूंढने पड़ेंगे। अब इसको कोविड को विष कहेंगे या नहीं कहेंगे, इस पे बहुत सारा आयुर्वेदिक स्कॉलर्स में डिबेट हो रहा है, क्योंकि अगर आप उसको विष कहते हो तो विष की चिकित्सा से वो ठीक हो जाना चाहिए। तो फिर क्या ये मात्र बिलवादी गुलिका देने से ठीक होगा? ऐसा भी अगेन नहीं है। सो अगेन इट इज द सेम थिंग कि आप उसको विष कहिए ना कहिए, ये तो टेक्निकलिटी हो गई, लेकिन बाद में द थिंग बिकम सिस्टेमिक। सो वेदर आप उसको ज्वर भी, आपने आगंतुक ज्वर भी कह दिया, लेकिन आगंतुक ज्वर भी बाद में निजे ही होने वाला है। सो वैसे ही विष में भी अगेन होस्ट कंपोनेंट है। विष बस उसको इसके लिए कहने में थोड़ा सा पॉइंट है कि इसकी संप्राप्ति बहुत ही आशुकारी है। व्याधि का स्वभाव अगर हम लोग देखें तो ये आशुकारी है। विद इन 14 days एवरीथिंग इज हैपेंड, विद इन 1 week ऑल दैट। जो भी बैड प्रोग्नोसिस होना है कोविड में, वो डे 5 से लेके 9 के बीच में होता है डायग्नोस होने के बाद। सो 5 to 9 आर क्रूशियल। सो इतनी रैपिडली हैपनिंग संप्राप्ति आयुर्वेद में सिर्फ 3 जगहों पे मिलेगी आपको, या तो विष में मिलेगी, या तो ज्वर में मिलेगी, या फिर विसर्प में मिलेगी। ये 3 व्याधि आशुकारी है, बाकी तो सभी चिरकारी व्याधियां हैं। सो उसको विष कहिए ना कहिए, वो तो टेक्निकल पार्ट हो गया। जनपदोध्वंस में हमने इन्फेक्शियस डिसीज को ढूंढना है। जनपदोध्वंस की बात हम सभी ने अभी यहाँ वहाँ पे बहुत कुछ पढ़ा होगा। अभी कोविड का आप लोग पढ़ते होंगे तो कि इसको जनपदोध्वंस कहना चाहिए। सुश्रुताचार्य ने इसको मरक कहा है, लेकिन देयर इज अगेन गुड डिबेट कि इसको क्या हम जनपदोध्वंस कह सकेंगे, क्योंकि जनपदोध्वंस में 4 पदार्थों में से एक दूषित होना आवश्यक है, वायु, देश, काल और भूमि। तो इसमें ना ही भूमि अफेक्टेड है, ना ही जल अफेक्टेड है, काल अफेक्टेड है आप कह सकते हो। बेसिकली जनपद रिफर्स टू पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। सो वैसा तो दिखने को मिलता है, सो इसलिए इसको जनपद कहा जा सकता है। बस इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या वायु दूषित है। सो देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिबेट। आप जस्ट इसको गूगल करिए कि क्या वायु दूषित है इसमें, वेदर कोविड इज अ एयरबॉर्न डिसीज और नॉट। क्योंकि सीडीसी यूएसए ने एयरबॉर्न डिसीज के प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा है, सीडीसी चाइना ने कहा है, डब्ल्यूएचओ ने कहा है, क्योंकि एरोजोल तो आफ्टर ऑल हवा में से ही जाएंगे। लेकिन आप इसको एयरबॉर्न, एक क्लासिकली एयरबॉर्न कहोगे तो अब तक तो पूरा इंडिया इन्फेक्ट हो गया होता। सो ये एयरबॉर्न है भी और नहीं भी, ऐसा थोड़ा सा बीच का सिचुएशन है। सो वेदर इट इज वायु की दृष्टि हुई है या नहीं हुई है, दोनों ओर से पक्ष रखे जा सकते हैं। सो दैट इज हाउ जनपदोध्वंस की में भी हमको इन्फेक्शियस डिसीजेस मिलेंगे। फिर वो सुश्रुताचार्य की वर्ष है, इसका उसका हाथ का खाना नहीं खाना है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ पता है आपको। एंड देन वन मोर थिंग है जहां पे हमको इन्फेक्शियस डिसीज देखने पड़ेंगे, वो है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या इज नॉट ओनली समथिंग सीजनल रिजिम, उसमें भी डिसीज का विचार आया है, उसमें भी पैथोलॉजी आई है। आई विल जस्ट शेयर दिस स्क्रीन। सी, this is the image I have borrowed from this journal, I guess, annual review of virology 2020. This is a publication of 2020 only, अप्रैल का ये publication है। कोई जापानीज ऑथर है, पेपर का नाम है ह्यूमिड एंड ड्राई एयर ब्रीदिंग है ये। उसमें एयरवे का इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होता है देखिए। तो इसमें देखिए ए एंड बी। सो इट इज प्रूवन, देयर आर 3 or 4 publications that dry एंड डिहाइड्रेटेड एयर ये कोविड के लिए ज़्यादा प्रो है। क्योंकि कोविड कब आया था? कोविड आया था पिछले नवंबर दिसंबर में चाइना में सबसे पहले। एंड ICMR एंड ऑल आर अफ्रेड कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू बी इन द विंटर। सो विंटर में हम इंडियन सिचुएशंस में कैसे क्या रिएक्ट करेंगे पता नहीं। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा होता है तो वहाँ पे देखना पड़ेगा क्या होता है। साउथ इंडिया में थोड़ा सा ठंड तो कम है, तो वो पार्ट होगा क्योंकि विंटर इज कमिंग। सो देखिए, सो दिस इज द पब्लिकेशन। इसका इमेज मैंने ये स्नैपशॉट लिया हूँ कि हाउ ह्यूमिड एयर का रोल कैसे होता है। स्किन, आपकी इम्यूनिटी का पहला लेयर स्किन है, तो ये एपिथेलियल सेल लेयर है, इसमें सीलिया आप देखते हो। एंड ये जो ब्लू कलर का है, आई एम टॉकिंग अबाउट फिगर ए, तो वो आगे का जो लेवल है वो म्यूकोजल लेयर है, नीचे का जो लेयर है वो पेरिसेलियर लेयर है।
एंड उसमें एक फ्लो मेंटेन होता है, दिस सीली आर कंटिन्यूसली मूविंग, सीलियरी सेल्स। तो ये जो ट्रैप्ड पार्टिकल है, मेड भी एनी कोविड वायरस है, जो भी है, बाकी बैक्टीरिया वगैरह होगा, तो वो ऊपर ही रहेगा एक तो, क्योंकि म्यूकस का लेयर अबंडेंट है, ओके, एंड पेरिसेलर लेयर मूविंग है, तो वो ट्रैप हो जाएगा और वो ऊपर का ऊपर बाहर का ही बाहर रहेगा। एंड जैसे ही आप हैंड वॉश करोगे, आप हाथ पैर धोगे, तो वो बाहर का बाहर चला जाएगा। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग विंटर? ड्यूरिंग विंटर एक तो वो म्यूकस लेयर कम हो जाता है, रुक्ष। अब पता चला स्नेहन का महत्व क्या है। इस हिसाब से देखो उस अभ्यंग की ओर, इस हिसाब से देखिए कि हमने वो शिशिर ऋतु में अभ्यंग क्यों बोला है, क्योंकि जो ड्राई एयर है शिशिर में, वो एक तो म्यूकस लेयर को कम करा रही है, एंड उससे पेरिसेलर लेयर का फ्लो भी उसमें आपको रिड्यूस मिलेगा। सो ऑब्वियसली जो भी पैथोजन है वो स्किन के एपिथेलियम तक आने के चांसेस बढ़ेंगे। दिस इज हाउ देयर इज अ रोल ऑफ winter, or there is role of how air is, dry and cold air. There is so much, there are so many publications on this कि what humidity, उसमें भी absolute humidity है, relative humidity है, कौन सी humidity का कोविड के साथ संबंध है। There are so many publications. Just see, this is another interesting figure from same publication कि क्या हो जाता है विंटर में, क्या क्या हो जाता है। तो विंटर में एक तो ये इपिथेलियल रिट्रैक्शन है, ये देखिए यहाँ पे एयरवे की जो, ये देखिए यहाँ पे एयरवे एपिथेलियल इंटीग्रिटी इज लॉस्ट। ये यहाँ पे दो जो एपिथेलियम के सेल्स है वो एक दूसरे से रिट्रैक्ट हो गए, क्योंकि स्निग्धता कम है, रुक्षता आ गई। सो ऑब्वियसली उसकी इंटीग्रिटी कम हो गई, तो वो जो पैथोजन है वो स्किन से अंदर आने के चांसेस बढ़ गए। एंड देन यू कैन सी हियर मैक्रोफेजेस एंड एवरीथिंग। वी विल ऑब्वियसली नॉट बी गोइंग इनटू डिटेल, हम बस इसको टच कर रहे हैं। तो ये जस्ट कोविड के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा था कि कोविड इज फेवरेबल इन ड्राई एंड कोल्ड एयर। तो यही तो कॉन्सेप्ट हमारी ऋतुचर्या में आया है, और क्या आया है। सो हमारी ऋतुचर्या में ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आ चुका है कि किस ऋतु में उस शरीर पे आपके क्या क्या प्रभाव आएगा, क्या क्या परिणाम आएगा, एंड हाउ टू डील विद दिस। सिर्फ उसका थियोरेटिकल वर्णन नहीं है, उसके लिए इस ऋतु में आप आसव यूज करिए, इस ऋतु में आप स्नेहन करिए, उसका ऑलरेडी हमारे पास प्रोटोकॉल भी मेंटेन्ड है। So this was about the basic overview of infectious diseases in Ayurveda. Infectious disease आयुर्वेद में कहाँ कहाँ पे है? कृमि में है, ज्वर में है, विष में है, एंड जनपदोध्वंस में है, एंड ऋतुचर्या में भी हमको ये ढूंढने पड़ेंगे। नाउ मूविंग टू द एक्चुअल आवर सिचुएशन, SARS-CoV-2 हम सभी ने अभी ये पढ़ के अभी आई गेस थक गए होंगे कि हम सबको ये पता है, ये मर्स, ये कोरोना फैमिली होती है, कोरोना विरेडी नाम की एक फैमिली है, इसका कोरोना वायरस ये एक जीनस है। देन इसके ऑलरेडी 4 स्पीसीज ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको वो तो ऑलरेडी, मतलब हम सभी को कोरोना जो जीनस है उसके इन्फेक्शन इसके पहले भी हो चुके हैं, तो वो साइनस एंड ऑल वही रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस दिखाते हैं। इसी फैमिली का सेम SARS-CoV-1 आया था, तो वो 2004 में उसका एपिडेमिक हुआ था, ये भी हमको पता है। मर्स के बारे में हम लोग को पता है। सो इस हिसाब से देर आर, सी जस्ट आई विल बी शेयरिंग स्क्रीन दैट, ये देखिए HCOV OC43-229E, ये ऑलरेडी पैथोजेनिक एलिमेंट्स URTI के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं। सो अभिसंगत ज्वर के आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है, एंड इस हिसाब से हम ये वायरस के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। देर इज़ अ लॉट ऑफ लिटरेचर, यू कैन गूगल इट। Now let us move to the disease progression. Actually कोविड में होने वाले स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो, एंड स्टेप वाइज इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होगा। वैसे अनिकेत सर इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बोलने वाले हैं, बट वाइल स्पीकिंग अबाउट पैथोफिजियोलॉजी आई जस्ट कांट स्किप इम्यूनोलॉजी, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा क्रक्स है। साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, एंड उसी से लंग की इंजरी होती है। ये सभी हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यहाँ वहाँ गूगल पे। So I will be just touching this. So these are the steps. So steps की जहाँ तक बात करेंगे, so this is the image.
just see this. What is happening in this case? Exposure to SARS-CoV-2, either no infection or infection. आप इम्यून ही हो कि आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ. देन आगे जाके है कि आप सिम्टोमेटिक हो गए, असिम्टोमेटिक हो गए. असिम्टोमेटिक ग्रीन में दिखाया है. देन है कि सिम्टोमेटिक है तो माइल्ड, मॉडरेट एंड देन सीवियर. माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में रिकवरी, आखिर में डेथ है. एंड देन ये जो नीचे का है ये देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस फिगर आई हैव ब्राउज्ड फ्रॉम वेरी गुड जर्नल फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी 2020, इसी ईयर का पब्लिकेशन है. तो हमको ये चीज ध्यान में रखनी है. जस्ट सी, ये जो नीचे का है इसको देखिए प्लीज स्टूडेंट्स, कि ग्रीन में उन्होंने कहा है इट इज प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी एंड रेड में उन्होंने कहा है इट इज इम्यून डिसरेगुलेशन. सो इट इज द सेम इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोविड एंड इट इज द सेम इम्यून रिस्पॉन्स दैट कैन लीड टू वर्सन प्रोग्नोसिस. गब्बर के ताक से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वो है गब्बर. दिस इज व्हाट सेज गब्बर इन शोले. सो इट इज योर इम्यूनिटी ओनली जो आपको बचाती भी है, एंड इट इज योर इम्यूनिटी ओनली जो आपको बिगाड़ने वाली है. सो जब हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है वगैरह वगैरह, ऐसा बूस्ट जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, तब आई एम वेरी सॉरी आयुर्वेदा स्टूडेंट्स, यू शुड बी वेरी कॉशियस. You need to Google and you need to understand it's not immunity boosting but it is immunomodulating. क्योंकि इम्यूनिटी आपने ज़्यादा अगर बूस्ट कर दिया तो ये इम्यून डिसरेगुलेशन हो जाएगा. इट इज हाइपर एग्रीवेटेड इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज कॉजिंग ARDS. सो दिस इज द बेसिक. सो हाउ द स्टेप वाइज दिस, so let us move to the stepwise pathology. Let us try to understand. This is step 1. Entry of virus in nasal passage and epithelial cells are going to affect. Seriated cells ज़्यादा affect होंगे. रिसेप्टर्स इसके दो है, ACE2 and TMPRSS2. And ACE2 is more important. That's why आपने अभी वो WhatsApp पे आपको जोक आया होगा कि there are only 2 symptoms that these 2 they are not happening in COVID. Rest all symptoms can happen. ऐसा जोक जिस किसी ने बनाया उसने क्यों बनाया? क्योंकि आए दिन हर एक नया सिम्टम लेके कोविड आ रहा है. कोई सूरत की न्यूज़ थी कि लोग कुछ तो ब्लाइंड हो गए, आंखों में अफेक्ट हो गए. किसी मुंबई का न्यूज़ था कि वो कुछ तो एम्बोलिज्म के पैर में चला गया, तो फिर वो डॉपलर करके सर्जन को कुछ चीज़ करनी पड़ी. सो ये क्यों है? देखिए सिंपल सी बात है. देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ कोविड. एक में नेजल पैसेज में आएगा, दूसरे में आपके URTI में आएगा, तीसरे में आपके लंग के इपिथेलियल को डैमेज करेगा, एंड उसके बाद इट विल गेट टू इन योर ब्लड स्ट्रीम, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज वायरेमिया. एंड वंस इट इज इन योर ब्लड स्ट्रीम, इट कैन गो एनीवेयर, but it can attach only the places where ACE2 receptor is. And this ACE2 receptor is there in your intestine, it is there in your testicles, it is there in your muscles. There are so many places. And that is why there are so many presentations of this disease. So ACE2 is the important thing. इसमें वायरल लोड लेस होगा लेकिन इंडिविजुअल कैन बी इन्फेक्शियस. इसमें थोड़ा सा माइल्ड इम्यून रिस्पॉन्स मिलेगा, TH1 रिस्पॉन्स. देन कम स्टेज 2. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी. मोस्ट केसेस में यहाँ पे वो एंड हो जाएगा. स्पुटम स्वैब एग्जिबिट्स SARS-CoV-2. यहाँ पे इस स्टेज में आपका ये पॉजिटिव आ जाएगा. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इनेट इम्यून रिस्पॉन्स आएगा. एंड यहाँ पे अगर ये IP10 है, MIGA है, MCP है, ये अगर मार्कर्स अगर ज़्यादा है तो दे आर एसोसिएटेड विथ बैड प्रोग्नोसिस. देन कम्स द थर्ड फेज. इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होगा. इसमें डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज होगा. एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें होगा ये कि आपके न्यूमोसाइट्स अफेक्ट होंगे, और इसको समझना बहुत ही आवश्यक है. देखिए आपके लंग्स में 3 प्रकार के सेल्स हैं हम सभी के लंग्स में. One is pneumocyte 1, second is pneumocyte 2, and third is alveolar macrophages. What are alveolar macrophages? You have macrophages everywhere. They are there in peritoneum, in brain there are microglial cells. So these cells are from immunity background. So इसलिए कि lungs में हवा का direct exposure है तो पैथोजन तो हर टाइम आने वाला है. So already there are alveolar macrophages. What are 2 another cells?
pneumocyte 1 and pneumocyte 2. Pneumocyte 1 is the most important cell जो कि आपके एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज में काम करती है, एंड न्यूमोसाइट 2 इज द सेल जिसका रोल गैसियस एक्सचेंज में नहीं है, लेकिन उसका रोल है कि नंबर 1 टू जनरेट सरफेक्टेंट. व्हाट इज सरफेक्टेंट? लंग में, एयरवे में फ्रिक्शन ना हो, इसके लिए सरफेक्टेंट जनरेट होना की आवश्यकता है. कुछ वहां पे म्यूकस चाहिए, कुछ ऐसा स्लिमी चीज चाहिए. आयुर्वेद में हम ऑलरेडी इसको कफ कहते हैं. उर इज द प्लेस फॉर कफ एंड ऑल, वी नो दैट. सो ये सरफेक्टेंट का जनरेशन करना ये न्यूमोसाइट 2 का काम है. न्यूमोसाइट 2 का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि न्यूमोसाइट 2 वर्क्स एज अ परकसर फॉर न्यूमोसाइट 1. यानी कि आपका न्यूमोसाइट 1 जब डैमेज हो जाएगा तो वो नया न्यूमोसाइट 1 बनाने के लिए न्यूमोसाइट 2 से ही नया न्यूमोसाइट 1 बनेगा. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स इन लंग. 1 न्यूमोसाइट 1 जो कि एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज करेगा. नंबर 2 न्यूमोसाइट 2 जो कि सरफेक्टेंट जनरेट करेगा. एंड आपका न्यूमोसाइट 1 जो डैमेज हो चुका है उसको भरने में मदद करेगा. Now, dear my students of Ayurveda, you only tell me that what is pneumocyte 2. And in COVID, what is most affected is pneumocyte 2. सबसे ज्यादा अफेक्टेड क्या है कोविड में? तो वो न्यूमोसाइट 2 है. न्यूमोसाइट 2 को अगर आयुर्वेद की परिभाषा में कहना है तो आप ही मुझे बताइए. आयुर्वेद की परिभाषा कर्म प्रधान है. आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ऑफ दोष धातु मल इज लेस स्ट्रक्चरल, मोर फंक्शनल. सो इसके फंक्शंस क्या है? कोविड जिस न्यूमोसाइट को अफेक्ट कर रहा है उस न्यूमोसाइट 2 के फंक्शंस है सरफेक्टेंट जनरेशन एंड सरफेक्टेंट यानी कफ, ऐसा मैं नहीं कहूंगा डायरेक्टली, एंड न्यूमोसाइट 1 को बनाना. सप्तमी शुक्रधरा नाम या सर्व शरीर व्यापिनी. आपकी सप्तमी शुक्रधरा कला जो है वो पूरे शरीर में है, क्योंकि वियर एंड टीयर हर जगह पे है. कुछ चंद सेल्स छोड़ के, कुछ किडनी के सेल्स है, कुछ ब्रेन के सेल्स है, वो छोड़ के बाकी हर जगह पे टिश्यू का डैमेज है और नया टिश्यू बन रहा है. ये नया टिश्यू बनाने का काम करने वाला न्यूमोसाइट 2 ये अगर कोविड को अफेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में मल्ल सिंदूर आएगा या कोई रसायन आएगा, सुवर्ण सिंदूर आएगा. ये अपने आप में सोचने वाली बात है. वाई रसायनास आर प्रपोज्ड फॉर दिस? This is obviously not the topic. I am not going to talking about treatment in this. I will be restricting myself to pathophysiology also. But I work as a, I am associated with, not I work as a, I am associated with, I am blessed to be associated with Shri Sadguru Vishwanath Maharaj Trust, my Guruji. And as a researching person, I will say. So Madhav Rasayan is the product, and that is made very economically available everywhere and people are using it. It is the product not for COVID, it is the product for viral fevers with pulmonary and coagulative manifestations. So that is there everywhere, and you must have received the news or reviews that this is working very well. What does it contain? उसका हाफ पोर्शन माका है, फिर यष्टि है, फिर पिपली है, फिर कुमारी है, फिर विडंग है और फिर अपमार्ग है. अपमार्ग को छोड़ेंगे तो पांचों की पांचों चीजें उसमें जो है वो रसायन है. उसमें हाफ पोर्शन माका है. माका का आसव जो है भृंगराजा सव वो आता है वाजीकरण अधिकार में. माका वाजीकरण औषधि है. माका कृमिहर भी है. और माका क्या चीज है? मार्कव. एक लाइन में अगर कह दे तो मार्कव इज अ चीज कि जिसको सूत शेखर को भावना देने के लिए नागार्जुन ने चूज किया है. आचार्य नागार्जुन बैठे थे एक दिन और उन्होंने सोचा कि चलो आज एक मेडिसिन बनाते हैं, सूत शेखर नाम इसका, साम पित्त के लिए बनाएंगे. डाल दिया उन्होंने सब कुछ, सुवर्ण ये वो सभी कंटेंट. और आचार्य नागार्जुन सोच रहे हैं कि अब मुझे साम पित्त पे काम करने वाली चीज चाहिए इसको भावना देने के लिए. तब आचार्य नागार्जुन ने चूज की हुई चीज माका है. So what is inflammation in Ayurveda? It is nothing but Rakta and Pitta only.
and at the same time Markov is Rasayan, at the same time Markov is Vajikaran. भृंग राजस्व का अधिकार, कल्पों के अधिकार, माय डियर फ्रेंड्स प्लीज देखा करो। प्रवाह पंचामृत हमको अम्ल पित्त का लगता है, वो होता है गुल्म का। सारस्वतारिष्ट होता है रसायन अधिकार का। दशमूलारिष्ट is for Vatvedi, no, it comes from Vajikaran chapter. So कल्प का अधिकार हम अगर देखेंगे तो मैं बात कर रहा था सप्तमी शुक्रधरा नाम, what COVID is affecting pneumocyte 2 and DAD, diffuse alveolar damage. It is considered as hallmark of COVID pathology. So there is alveolar damage and यहाँ पे क्रूशियल इम्यूनिटी की अब मैं बात नहीं करता हूँ, आई गेस हाफ आवर हो चुका होगा, आई डोंट हैव एक्सेस टू टाइम, आई एम हाँ यस 20 मिनट्स बचे हैं। सो मैं इम्यूनिटी का मैं पार्ट छोड़ देता हूँ। जस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम बस ये समझते हैं कि ये जो रोल है, यहाँ पे जो रोल है, ये रोल शुक्र का है। लेट अस मूव। फोर्थ जो स्टेज है, ये स्टेज है एक्चुअल वायरेमिया हो गया, तो यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स डिसरेगुलेट हो गया, ARDS में पेशेंट चला गया, थ्रोम्बोसिस हो रहा है हमको पता है, एंड देन सब कुछ थ्रोम्बोसिस एंड सब कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, एंड MODS मल्टीपल ऑर्गन उसका डिसफंक्शन सिंड्रोम, ये चीज़ हो जाती है। तो इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम कोविड की बात करते हैं तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉट ऑब्स्ट्रक्टिव, एयरवे वर्सेस एल्वियोलर डिसीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या शब्द है सामने आपके? रिस्ट्रिक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव, एल्वियोलर, एयरवे डिसीज। देखिएगा, देखिए लंग की जो पैथोलॉजी होती है उसके दो टाइप्स है। व्हाट इज द ब्रॉड बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लंग पैथोलॉजी? इट इज टू। एक है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एयरवे डिसीज। इसमें एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। एयरवे क्या है? आपका ट्रेकिया है, फिर वो दो अल्वियोलस तक। इस एयरवे में सिक्रीशंस ज्यादा हो गए और ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ये लंग पैथोलॉजी का पहला टाइप है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज, और इसमें पैथोलॉजी होती है एयरवे में। दूसरा टाइप आता है रिस्ट्रिक्टिव डिसीज, नॉट ऑब्स्ट्रक्टिव बट रिस्ट्रिक्टिव। सो लंग में आपके है क्या? दो ही तो चीजें हैं, एक है एल्वियोलर सेल्स और एक है वायु और आकाश महाभूत, वो आपका पूरा ट्रैक। सो एक तो एयरवे अफेक्ट होगा, या तो उस एयरवे को जिन्होंने वॉल करके सर्व किया है वो एल्वियोलस अफेक्ट होंगे। सो सेकंड टाइप इज एल्वियोलर डिसीज एंड इसी को कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव डिसीज, क्योंकि इसमें आपका लंग का पैथोलॉजी हो गया तो वो टिश्यू उतना काम में नहीं आएगा। सो काम में आने वाला टिश्यू रिस्ट्रिक्ट हो गया। सो जेंटलमैन, COVID-19 is not obstructive but a restrictive disease. COVID-19 is not a airway disease but it is a alveolar disease. DAD, diffuse alveolar damage, is the hallmark of COVID pathology. क्योंकि आप देखिए, हम ICU में हम सभी ने काम किया है, क्या होता है? वो सक्शन मशीन होता है, सिक्रीशन से बहुत ज्यादा। इफ यू हैव वर्कड इन कोविड वार्ड, लेट मी टेल यू, there are no suction machines in COVID ward because there are no secretions to aspirate. What is affected is not airway but the alveolus, and that is why यहाँ पे वैद्य को टिपिकल एयरवे डिसीज में जो चीज़ें याद आती है, मैं मेडिसिन पार्ट में नहीं जाऊँगा, उन चीज़ों को यूज करने के बजाय वैद्य को चाहिए कि एल्वियोलस पे काम करने वाले, न्यूमोसाइट्स पे काम करने वाले मेडिसिन हमको चाहिए। ओके, सो ये जो चीज है ये हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये एयरवे डिसीज नहीं है बल्कि ये एल्वियोलस का डिसीज है। एंड नाउ लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द इवेंट्स इन लंग। आपके लंग में क्या क्या होता है? तो पहला तो एक तो लंग में होता है कि डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज हो जाता है, दूसरे में होता है हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, और तीसरे में होता है इंटरस्टिशियल वाइडनिंग। दैट्स वाई ये पैचेस ऑफ लंग फाइब्रोसिस आते हैं। तो ये तीन चीजें हैं कि जो आपके लंग में होती है। नंबर 1 में देखते हैं कि DAD, डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज। सो इसमें आपका ये हो गया। अब ये पहला वाला कॉलम छोड़ दीजिए, ओके। सेकंड कॉलम जो है राइट साइड वाला, उसको बस देखते हैं।
अब हमको अगर एल्वियोलाई की सोचनी है तो हमको ज्यादा क्या सोचना पड़ेगा? रक्तफेन प्रवाह फुफ्फुसा। रक्त कोई बबल्स आ गए तो ये बबल्स यानी कि वो एयर सैक है, और वो जो एल्वियोलर टिश्यू है वो आयुर्वेद में क्या है? रक्तफेन प्रवाह फुफ्फुसा। तो ये नथिंग बट रक्त है। दैट इज वाई कोविड की पैथोफिजियोलॉजी में लीवर इज सेंट्रल। लीवर इज सेंट्रल क्योंकि कोविड में बड़ा है सीआरपी। सीआरपी जनरेट होता है लीवर में। सीआरपी इज इन्फ्लेमेशनरी मार्कर। कोविड में बड़ा है डी डाइमर। डी डाइमर इज प्रोडक्ट ऑफ आपका कोएगुलेटिव कैस्केड। वो अगेन सभी वो जो कोएगुलेटिव फैक्टर्स है दे आर एसोसिएटेड विद लीवर। इवन योर इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विद लीवर। सो एंड ये लीवर आयुर्वेद के हिसाब से रक्तवानम सुरतसा मूल स्थान है, और वही रक्त का जो संबंध है, वही रक्त का संबंध है रक्तफेन प्रवाह फुफ्फुसा करके आ जाता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रक्तफेन प्रवाह फुफ्फुसा। एंड देन दूसरा है कि न्यूमोसाइट 2 से ही अगर न्यूमोसाइट 1 बन रहे हैं तो इसको हम आयुर्वेद में शुक्र धातु के तहत समझेंगे, तो हमको लंग की रीजनरेटिव कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये कोविड की फेज 1 हो गई, लंग में डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज। ये डैमेज होने के बाद फिर आगे की फेज आती है हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। अ मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन्स एंड डेड सेल्स वो बन जाती है एल्वियोलस और वेसल के बीच, जिससे गैसियस एक्सचेंज या तो डिफिकल्ट हो जाता है या तो इम्पॉसिबल हो जाता है। एल्वियोलर कंडेंसेशन हो गया, न्यूमोनिया हो गया। अब इसको आयुर्वेद में क्या कहेंगे? एक तो पहली चीज है कि एक्सुडेट सही है, एक्सुडेट से ये हाइलाइन मेम्ब्रेन बन रही है। दिस इज एक्सुडेटिव इन्फ्लेमेशन। तो इसमें आयुर्वेद में हमको यह समझना पड़ेगा कि यह विस्यंदन है, फेनोमेनॉन ऑफ लिक्विफिकेशन है। दैट्स वाई देखिए जल महाभूत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जल महाभूत के अग्नि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोविड में। वो इसलिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज, जब हम लंग्स की बात करते हैं तब हमको सिर्फ प्राणव स्रोतस्य याद आता है, लेकिन प्राणवानम स्रोतसम हृदय मूलम महास्रोतस्य। सो जब एक वैद्य लंग की ओर देखेगा तो उसको महास्रोतस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। ये हमको वैद्य को ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये अगर मॉडर्न वाले भी ध्यान में रखेंगे तो दे कैन ऑफर सम पैराडाइम शिफ्ट। एंड तीसरा चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, लंग माने प्राणवह देख लिया, लंग माने प्राणवानाम स्रोतसम हृदय और महास्रोतस भी देख लिया। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि उदक वाहनाम स्रोतसाम तालुमूलम क्लोमम च। एंड क्लोम को लेके बहुत बड़ा डिबेट है, लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े विद्वानों की मान्यता है क्लोम यानी एग्जैक्टली क्या, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जो कहते हैं क्लोम यानी लंग्स। क्योंकि मॉडर्न फिजियोलॉजी में हमको पता है कि जो भी वाटर मेटाबॉलिज्म है उसका जितना संबंध किडनी के साथ है, रादर उतना ही संबंध आपके लंग्स के साथ है। सो दैट्स वाई विकृत जल को निकाल देना, विकृत जल को निकाल देना, ये आपके ट्रीटमेंट का फेनोमेनन होना चाहिए। अगेन आई एम ऑल द वे सिंस 4 months आई एम इनटू इट ओनली माधव रसायन और ओन प्रोडक्ट। तो उसमें हमने अपामार्ग डाला है जो कि मूत्रल है, जो कि वाटर को बाहर निकालेगा। यष्टि जो है मूत्र विरेजन है। यष्टि मधु प्राणव स्रोतस पे कैसे काम करती है? यष्टि मधु स्वर्य है, कंठ पे काम करेगी। बल्य है, लंग्स पे काम करेगी। और वही यष्टि मधु मूत्र विरेजन है, यानी कि मूत्र को अच्छा कलर देना, यानी कि मूत्र के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिसाइड करके जल महाभूत के अग्नि को अच्छा रखना, और मूत्र के द्वारा ये जो हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करने वाला, ये जो एक्सुडेटिव लिक्विफिकेशन वाला जो पार्ट है, इसको निकालने के लिए यू नीड गुड मूत्रल थिंग। एंड क्लोम इज कंसिडर्ड एज लंग्स बाय सो मेनी आयुर्वेदा लीजेंड्स। क्लोम की डिबेट जब हम पढ़ते हैं, पेपर्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि किसने क्या माना है। आप लोगों ने वो बड़ी वाली बुक कौन सी आती है, वो एनाटॉमी की, पारिशब्दम शब्दार्थ शारीरम पढ़ी होगी वैद्यनाथ की। तो उसमें किस ऑर्गन को लेके किस विद्वान ने क्या कहा है वो सब कुछ है उसमें। सो इसमें ये जो हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है और एल्वियोलर कंडीशन है, इसमें प्राणावृत व्यान के भी सिम्टम्स है। कोविड-19 में सेंस चला जाता है, अरुचि चली जाती है, तो ये सिम्टम्स प्राणावृत व्यान में आए हैं। कुछ प्राणावृत व्यान के सिम्टम्स यहाँ पे मैच कर रहे हैं कुछ, तो ये प्राण और व्यान के बीच का आवृतत्व वगैरह कहा जा सकता है। चलिए आवृतत्व में नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपने आप में एक अनदर टॉपिक है। एंड दिस इज द लास्ट स्टेज इन योर लंग्स। आपके लंग्स में आखिरी क्या होता है?
तो वो ये है इंटरस्टिशियल वाइडनिंग एंड देन पैचेस ऑफ लंग फाइब्रोसिस। अभी पोस्ट कोविड में फाइब्रोसिस अपने को बहुत सारा देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये लंग फाइब्रोसिस है। सो एक तो टिश्यू अफेक्ट भी हो गया, अफेक्ट हो गया तो वो डैमेज हो गया, श्रिंक हो गया। तो श्रिंक अगर हो गया तो ऑब्वियसली इंटरस्टिशनल वाइडनिंग हो जाएगा एंड ये पैचेस आ जाएंगे लंग फाइब्रोसिस के। सो यहाँ पे एक्चुअली आयुर्वेद बहुत कुछ ऑफर कर सकता है पोस्ट कोविड में। पोस्ट कोविड में अश्वगंधा पाक नाम का एक मेडिसिन आता है, वासाघृत है, बहुत सारी चीज़ें मेडिसिन में हम नहीं जाएंगे। लेकिन पोस्ट कोविड में लंग फाइब्रोसिस, क्योंकि देखिए इट इज़ नॉट अबाउट एयरवे, ये एयरवे का डिसीज नहीं है। वो कफग्न चीज़ें ध्यान में से उसको एक लिमिट तक ही महत्व दो, आपको आशय को सुधारना है यहाँ पे, ये चीज़, दिस इज द टेक होम मैसेज। सो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये या तो उधर काम कहेंगे या तो उपद्रव कहेंगे। तो ये खरपाक मानो हो गया है और ये टिश्यू का हार्डनिंग हो गया है एंड दिस से ये टिश्यू में ये हो चुका है। सो दिस वाज अबाउट द इवेंट्स इन लंग्स। नाउ मूविंग टू डायग्नोसिस ऑफ कोविड। सो अब मैं वो सब कुछ मैं नहीं जाऊँगा कि रैपिड एंटीजन का मतलब क्या होता है, आरसीटी का मतलब क्या होता है, वो आपकी जो कोविड की जो टेस्ट होती है पीसीआर, उसका क्या महत्व होता है। सो पीसीआर ही ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी पीसीआर में उसका भी एक्यूरेसी 70% ही है। तो फिर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्या है? इन डेवलप्ड कंट्रीज दे आर यूजिंग HRCT एज अ टूल ऑफ कोविड। हमारी बात ही छोड़िए, हम तो डेवलपिंग कंट्री है, अपने को तो पीसीआर भी नहीं परवड़ता 2800 रुपये का। सो अपन तो रैपिड एंटीजन से काम चला रहे हैं। लेकिन इन डेवलप्ड कंट्रीज व्हाट दे आर डूइंग HRCT, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन ऑफ लंग्स ऑफ ईच एंड एवरी पेशेंट, एंड इफ PCR is negative but HRCT score is threshold is more, they are considering it as a COVID positive only. This is so beautiful. When I came to know that in developing countries they are using HRCT as a tool for diagnosis, forget whether virus is there in आपके सैंपल में वायरस मिल रहा है कि नहीं, छोड़ दो, HRCT करो, लंग्स में कंडीशन क्या है वो देखो। अगर लंग्स अफेक्टेड है तो हम इसको कोविड कहेंगे, अरे क्या बात है, क्या बात है, यही तो हमारे चरकाचार्य ने कहा है, नहीं सर्वविकारणाम नामम अस्ति ध्रुवा स्थिति। चलो छोड़िए, आपको हर डिसीज का नाम देने को नहीं आया तो भी छोड़ दो, डोंट वरी, टेंशन मत ले। स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतर्गतश्चैव जनयति आमयान बहुन। वही कुपित दोष अलग अलग समुत्थान के हिसाब से अलग अलग स्थान पे जाएंगे तो जनयति आमयान बहुन, बहुत सारे अलग अलग प्रेजेंटेशंस करेंगे रे। तो ये कोविड के प्रेजेंटेशन में आज ये है, कल वो है, छोड़ दो। ये हमारे चरकाचार्य ने चरक सूत्र स्थान 18 में ऑलरेडी बता चुके हैं, त्रिशोतीय चैप्टर में। और फिर अनुक्त विचारों का विचार कैसे करना है अनुक्त व्याधियों का, वो भी बता चुके हैं। तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणि च समुत्थान विशेषांश बुधवा कर्म समाचरेत। आपको हर डिसीज हमने आयुर्वेद में भले ही नहीं दिया हो, लेकिन आप ये बात समझिए कि वही कुपित दोष समुत्थान विशेष अलग अलग हेतुओं के हिसाब से अलग अलग स्थानांतरों में जाएगा, अलग अलग व्याधियां उत्पन्न करेगा। और इनको समझने के 3 मार्ग में आपको, 3 सूत्र में आपको दे रहा हूं, चरकाचार्य कह रहे हैं। पहला है विकार प्रकृति, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है समझिए। दूसरा है अधिष्ठान, कहां पे है वो, ये समझिए। देखिए ना कितना ब्यूटीफुल है। वो पीसीआर को मारो गोली, पीसीआर का उसका सिर्फ 70% ही है, HRCT करो कहते हैं वो लोग। दे आर यूजिंग HRCT एज अ डायग्नोस्टिक टूल। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू दिस अधिष्ठान, लोकेशन एंड समुत्थान विशेष, किस हेतु से, इटियोपैथोजेनेसिस क्या हुआ है, ये समझ के आप किसी भी व्याधि को समझिए। ये यहाँ पे कहा है, तो इस हिसाब से HRCT हमको लोकेशन दिखाती है, हेतु हमको वो चीज समुत्थान विशेष यानी कि हेतु हमको समझाता है कि वो चीज कैसे इटियोपैथोजेनेसिस एक्सटर्नली हुआ है, और पैथोजेनेसिस यानी कि प्रेजेंटेशन हमको समझ में आ जाता है। तो इट इज क्वाइट, वी आर वेरी रिच कि हमारे पास चरक संहिता है कि जिसमें ये सभी सूत्र हमको ऑलरेडी बताए हैं। Declining one phone, there are phones. So इसमें हमने लंग में इवेंट्स क्या क्या होते हैं वो देखा। नाउ कमिंग टू आयुर्वेदिक ट्रांसलेशन, कंठकुब्ज सन्निपात है, श्वसनक सन्निपात है, उसके सिम्टम्स इसके साथ मैच करते हैं। इसका दोषिक प्रोफाइल क्या है, ये प्रोफाइल
अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ कोविड वात कफ प्रदान है। मेरे पास समय ज़्यादा नहीं होने के कारण मैं इलेबोरेट नहीं करूँगा, रेफरेंसेस मैं सामने है लेकिन दे नहीं पाऊँगा समय कम होने के कारण। लेकिन लेट मी टेल यू जेंटलमैन, द फर्स्ट हाफ ऑफ कोविड इज वात कफ, बट वंस देर इज ARDS, वंस देर इज immune dysregulation, the presentation becomes vata pittach. There becomes involvement of marmas, there becomes involvement of organs, and then vyadhi presentation goes to your tritiya roga marga, marmasthi sandhi. So ARDS and उसके बाद की जो पैथोलॉजी है उसमें पित्त प्रधानता है, rather inflammation is about पित्त, infection is more about पित्त। ये जो एल्वुलर डैमेज हुआ ये सिर्फ वायु के कारण हुआ, शोष नहीं है, ये एक्चुअली वहां पे टिश्यू डैमेज हुआ है, ये पित्त वात और के साथ साथ वहां पे पित्त भी है। सो पित्त हैज गॉट वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैसे क्या, आई हैव यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन मैं अभी समय के चलते थोड़ा सा मैं रैपिडली चलूंगा इसके आगे का प्रेजेंटेशन। साइटोकाइन स्टॉर्म, अब ये साइटोकाइन स्टॉर्म का क्या करेंगे? हर कोई आके बता रहा है साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा है, तो आपके आयुर्वेद में साइटोकाइन स्टॉर्म के लिए कुछ है क्या? जेंटलमैन, हम लोग इसी में है, तो हम लोगों ने मतलब मैं ऐसे ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैं 4 महीने पढ़ा हूँ उसके बाद में, लेट मी टेल यू, देर आर सो मेनी काइटोकाइंस एंड देर इज सो मेनी इंटरप्ले एंड देर आर सो मेनी प्रो इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसमें बहुत सारा झोल है। बस मैं आपको एक चीज़ पक्का कह सकता हूँ, और वो मैं कहता हूँ कि साइटोकाइंस आर जस्ट मैसेंजर्स। वो बस मैसेंजर्स है इम्यून सिस्टम के मैसेज देने के लिए, चलो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करो, चलो प्रो इन्फ्लेमेटरी काम करो। सो ये मैसेंजर को आयुर्वेद ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। आयुर्वेद ने इंपॉर्टेंस दिया है कारण को और कार्य को। कार्य ये हो रहा है कि लंग डैमेज हो रहा है, कार्य ये हो रहा है कि थ्रोम्बस बन रहा है, तो उसको सोचिए। कारण ये है कि वायरस, सो इन्फेक्शियस डिसीज को कैसे सोचना है ये सोचिए। सो आप कारण को पकड़िए, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोकाइन स्टॉर्म और वो सभी साइटोकाइंस के सो मेनी पेपर्स पढ़ने के बाद, और अब इसको आयुर्वेद में क्या कहेंगे? अब ये साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ है तो ये वात की वृद्धि हुई है, अग्नि एग्रेवेट हो चुका है, धातुपाक हो चुका है करके इसको कोरिलेट करने का बहुत बड़ा टेम्पटेशन हो जाएगा। कोरिलेशन का ही मैं क्या कहूँ, कोरिलेशन लोगों को बड़ा मज़ा आता है कोरिलेशन करके। मैं भी कल को एक आध दूसरा पेपर छाप वाप दूंगा, उससे मेरा बायोडाटा बढ़ेगा, लेकिन दैट इज़ एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज़। लेट मी टेल यू जेंटलमैन, ये मतलब कि साइटोकाइन जो है इसको आप वात कहो, पित्त कहो, अग्नि कहो, अरे ऐसा आप सिक्लोड कुछ नहीं कह सकते। ये सब कुछ वात पित्त कफ अग्नि, ये सब कुछ वहाँ पे एट टाइम ही तो रोल प्ले करता है। ये हायर लेवल ऑफ एरार्की है अपनी ये दोष धातु मल अग्नि की। सो इसको हम क्यों मतलब ऐसा उसको अगेन टुकड़ों में सोचने का प्रयास करते हैं? सो ये आपको जरूर लगेगा कि हाँ साइटोकाइन स्टॉर्म आज मैंने पढ़ा तो ये डिसरेगुलेटेड अग्नि है, ये डिसरेगुलेटेड पित्त है। सो लगने को बहुत कुछ लग सकता है, लेकिन लेट मी टेल यू, साइटोकाइंस आर जस्ट मैसेंजर्स। ये मैसेंजर्स कहाँ से आए, कारण क्या था? तो वो कारण था माइक्रोब या पैथोजन या वायरस। तो इन्फेक्शियस डिसीज को कैसे सोचना है हमने देख लिया। और इन साइटोकाइंस से हो क्या रहा है, व्हाट इज एंड प्रोडक्ट? एंड प्रोडक्ट को देखिए। एंड प्रोडक्ट इज आपका लंग डैमेज हो रहा है, एंड प्रोडक्ट इज कोएगुलोपैथीज हो रही है, एंड प्रोडक्ट इज कोएगुलोपैथीज यहाँ वहाँ पे अटक के, किधर एम्बोलिज्म हो रहा है, किधर कोई किसी की सेरेब्रल आर्टरी में अटक सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आयुर्वेद में ऑलरेडी ज्वर का उपद्रव करके रक्तपित्त बोला है। सो इसको ज्वर कहेंगे, रक्तपित्त कहेंगे, श्वसनक सन्निपात कहेंगे, प्राणवायु स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट कहेंगे। ये इसका जो मैनिफेस्टेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कारण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइंस आर जस्ट मैसेंजर्स। सो एकेडमिकली उसका इंपॉर्टेंस जरूरत है, एकेडमिकली नो डाउट इंपॉर्टेंस है उसका कि कौन सा साइटोकाइन है, उसका रोल क्या क्या है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फॉर आयुर्वेदिक फिजिशियन कार्य क्या है? लंग डैमेज, कोएगुलोपैथीज। कारण क्या है? कृमिजन्य विचार, विषजन्य विचार। ये सोच के काम हो जाता है। देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड में आपको पता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रेजेंटेशन बहुत सारा मिल रहा है। कौन कौन से है मैं नहीं जाऊंगा उसमें। एब्डोमिनल पेन है उसमें, देन उसमें है कि वॉमिटिंग है, नौशिया है, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन्स में, आपके जीआईटी में बहुत सारा ACE2 है,
आयुर्वेद के हिसाब से प्राणवहनम श्रुतसम हृदय मूलम महाश्रुतश्च है। न्यूरल प्रेजेंटेशंस बहुत सारे हैं इंडिया में। आई गेस अगर ये न्यूरल और कार्डियक प्रेजेंटेशंस है तो मुझे लगता है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड के पब्लिकेशंस ज़्यादा है। इंडियन पब्लिकेशंस पब्लिश अब तक नहीं हुए, इसलिए इंडियन प्रेजेंटेशन में कार्डियक कंपोनेंट कम है, न्यूरल कंपोनेंट कम है, या फिर इंडियन हैबिटेट में हमारे देश में न्यूरल कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस कम है। इट इज़ येट टू बी नोन, ये अब तक समझ में आने वाला है। लेकिन न्यूरल कॉम्प्लिकेशंस के वेस्टर्न वर्ल्ड के पब्लिकेशंस बहुत सारे मिलते हैं। तो प्राण इज द थिंग जिसके हिसाब से लंग और ब्रेन आयुर्वेद ने कम्युनिकेट किया है। प्राण कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं वहाँ पे। तो देखिए प्राणवाहनम श्रुतसम हृदय मूलम महाश्रुतश्च, यहाँ पे जब हृदय शब्द आता है तो आचार्य गंगाधर टीका करते हैं कि हृदयम वक्षः। सो जब प्राणवाह स्रोतस का मूल स्थान करके हृदय चल रहा है तो वो हार्ट प्लस लंग्स है, हृदयम वक्षः। और जब रसवह स्रोतस का मूल स्थान करके वो चल रहा है तब वो सिर्फ हृदय है, सिर्फ हार्ट है। तो ऑब्वियसली कार्डियक प्रेजेंटेशन भी मिलेगा। वैस्कुलोपैथीज मिल रही है बहुत सारी, एंड कोएगुलोपैथीज मिल रही है। तो जैसे ही कोएगुलेशन मिल रहा है तो मैंने भी जैसे 2 मिनट पहले कहा कि चलो रक्तपित्त ज्वर का ही उपद्रव है और रक्तपित्त में क्लॉट्स होते हैं, तो कफज रक्तपित्त में, तो ये ज्वर और ये रक्तपित्त हम इसको कह सकते हैं। लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू से इट एज अ रक्तपित्त ओनली, क्योंकि देखिए कोएगुलेशन, कोएगुलेटिव कैस्केड किन कारणों से उत्पन्न होता है? या तो टिश्यू डैमेज या तो माइन्यूट वेसल का डैमेज। ये दोनों चीजों से कोएगुलेटिव कैस्केड आपका उत्पन्न होगा। सो माइन्यूट वेसल में इन्फार्क्ट हुआ और वहां पे ब्लीड हुआ, इसलिए कोएगुलेशन आएगा। अब कोएगुलेशन आ गया, हीमोस्टेसिस हो गया, ब्लड का जो फ्लो था वो रुक गया, अब उस थ्रोम्बस की जरूरत नहीं है। तो बॉडी अब लाती है इंटरप्ले में प्लाज्मिन को, हम सभी ने ये पढ़ा है, और ये प्लाज्मिन डिग्रेड करता है उस फाइब्रिन के क्लॉट को। एंड ये फाइब्रिन के क्लॉट को डिग्रेड करके 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 उसका आखिरी प्रोडक्ट है कि क्या है उसका आखिरी प्रोडक्ट? वो है कि डी डायमर। एंड दैट्स वाई हम लोग क्लिनिकली डी डायमर की वैल्यूज भी देखते हैं। तो ये हर बार इसको रक्तपित्त भी कहने की जरूरत नहीं, इसका बस मतलब ये है कि अंदर ही अंदर कुछ तो वैस्कुलर इन्फार्क्ट हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली पित्त की उष्णता है। दैट्स वाई जहाँ तक मैं पढ़ने का प्रयास किया हूँ कोविड को, मुझे इसमें पित्त की प्रधानता बहुत ज़्यादा लगती है। तो क्योंकि ये माइक्रो वेसल्स को डैमेज करेगा तभी तो थ्रोम्बस आएगा उसका रिस्पॉन्स करके, और थ्रोम्बस का काम हो गया, हीमोस्टेसिस हो गया, तो वो थ्रोम्बस को डीजनरेट करने के लिए प्लाज्मिन आएगा और फिर जाके बाद में डी डायमर बढ़ेगा। तो ये पित्त का रोल है इसमें। तो ज़्यादा कुछ उष्ण चीज़ों का सेवन कफ का बीमारी है ऐसा सोच के अगर कोई कर रहा है तो आई गेस वन नीड टू बी वेरी कॉशियस। रीनल कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं। रीनल यस, देयर आर सो मेनी पब्लिकेशंस है कि किडनी अफेक्टेड मिली, वो जो जब उन्होंने ये किया डेड बॉडी का डिसेक्शन किया तो पोस्टमार्टम किया तो किडनी बहुत सारी अफेक्टेड मिली है। CRP बढ़ा हुआ, उसके साथ साथ क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ है तो उसका प्रोग्नोसिस बैड है। सो दैट्स वाई मैंने 2 मिनट पहले कहा कि अपामार्ग और EST। दैट्स वाई मैंने 5 मिनट पहले कहा कि किडनी का रोल यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि आयुर्वेद में लंग की आप सोचोगे तो किडनी सोचोगे, किडनी सोचोगे तो आपको क्षतक्षीण में जाना पड़ेगा। खोलिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैं स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, UG PG, ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप चरक चिकित्सा खोलोगे, क्षतक्षीण चैप्टर, एंड उसमें जो सर्पिगुण आया है उसकी फलश्रुति देखना। कास्ट चैप्टर पढ़िए, गुक्सराधिकृत की फलश्रुति पढ़िए, अमृतप्राश की फलश्रुति पढ़िए, विदारिकंद की फलश्रुति पढ़िए जो कास में आया है। यू विल गेट मूत्र कृच्र, यू विल गेट मूत्र विवरणता, यू विल गेट हिमैचूरिया। वो किधर मिलता है आपको? क्षतक्षीण में मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से प्राणवाह का संबंध किडनी से ज्यादा है, क्योंकि उस प्राणवाह के लंग को क्लोम माना गया है। तो वाटर मेटाबॉलिज्म, बॉडी का एक्सेस वाटर निकाल देना, ये फंक्शन लंग का भी और किडनी का भी है। इस हिसाब से एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को लंग और किडनी, किडनी और लंग, ये दोनों इकट्ठा लेके ही चलने पड़ते हैं, क्योंकि वैसा है और वैसा मॉडर्न फिजियोलॉजी भी कहती है। सो यहाँ पे किडनी के कॉम्प्लिकेशंस भी मिलते हैं, एंड देन आखिर में सेप्सिस हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा। ये बस एक हम लोग बस इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं। आई एम जस्ट फिनिशिंग दिस। 12:05 हो चुके हैं। मेरे बात
अनिकेत सर बोलेंगे इम्यून फिजियोलॉजी पे, इम्यून पैथोलॉजी पे। जस्ट सी द इन्वेस्टिगेशंस एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड उसका मीनिंग। पहला है इन्वेस्टिगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है एनएल रेशियो। वो एन गड़बड़ी से आ गया। एनएल रेशियो यानी कि क्या? न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट का रेशियो। ये नॉर्मल कितना होता है? ये होता है 1:3। अगर लिम्फोसाइट 1 है तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स 3 होने चाहिए। तो ये डिटोरिएट हो जाता है, इसमें लिम्फोसाइट्स कम हो जाती है। एंड क्योंकि लिम्फोसाइट्स वहाँ पे काम में आ रही है वो वायरस के साथ लड़ाई करते करते, एंड न्यूट्रोफिल्स बढ़ी हुई है, तो ये रेशियो डिटोरिएट होना ये बहुत बड़ा मार्कर है इसका इन्वेस्टिगेशन। इसमें आयुर्वेद में क्या कहेंगे? यस, देयर इज इंसल्ट, देयर इज इन्फेक्शन, सो बॉडी इज ट्राइंग टू ये है कि आपकी बॉडी अटैक करने का प्रयास कर रही है। तो ये इम्यूनिटी करके जो भी आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है वो वहां पे यहाँ पे कोविड को ट्रीट करते वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा। ये हो गया पहली बात। दूसरा इन्वेस्टिगेशन आता है सीआरपी। व्हाट इज सीआरपी? सी रिएक्टिव प्रोटीन। वेयर इट इज जनरेटेड? इट इज जनरेटेड इन योर लीवर। What is the trigger for generating CRP? It is inflammation, it is autoimmunity and it is CVD also. ये मैंने 3 बस इंपॉर्टेंट लिए हैं, बाकी भी है। इन्फेक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ऑटोइम्यूनिटी, CVD. Let me tell you, CRP is a early marker as well as marker for bad prognosis. CRP is both. वो अर्ली मार्कर भी है। आपका ये टेस्ट नेगेटिव है, वो टेस्ट पॉजिटिव है, ऐसे कंफ्यूजन में अगर है तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए भी सीआरपी बढ़ा है कि नहीं, ये काम में आता है, ऐसा भी कुछ पब्लिकेशंस कहते हैं। एंड सीआरपी प्रोग्नोसिस बैड होने का भी मार्कर है। सो ये बेसिकली है कि ये इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में जनरेट किया हुआ प्रोटीन है। किसने जनरेट किया है? लीवर ने जनरेट किया है, लीवर ने। फिर आगे का मार्कर है LDH. LDH इज अगेन द मार्कर फॉर टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज बॉडी में कितना हुआ है, नॉट ओनली लंग्स का। ये बस कोविड में यूज होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोविड के टाइम पे आ गए, ये पहले से मार्कर्स है। सो इसमें एल्वुलर टिश्यू डैमेज साथ साथ बाकी टिश्यूज का डैमेज भी ये दिखाएगा। तो ये टिश्यू डैमेज क्या है? ये नेक्रोसिस है, ये शोष किया है, आपके वायु ने यहाँ पे लंग्स में आके शोष किया, ये घटना नहीं है। ये जो टिश्यू डैमेज है ये पित्त ने किया है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन पित्त से है, इन्फ्लेमेशन रक्त से है। सो एक वैद्य को कोविड के साथ डील करते वक्त प्राणवाहनम सुरतसम हृदय मूलम महासुरतश्च, इसका जितना ख्याल रखना पड़ता है उतना ही या फिर उससे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है रक्तवाहनम सुरतसम यकृत मूलम प्लीहाच का, क्योंकि इट इज रक्त जो कि प्राण को यहां वहां लेके जाता है। प्राणो ही शोणितम अनुवर्तन्ते, चरक सूत्र स्थान 24। प्राण रक्त को फॉलो करता है, रक्त प्राण को फॉलो करता है। सो रक्तवाहनम सुरतसम यकृत मूलम, यकृत इज द ऑर्गन फॉर इम्यूनिटी, यकृत इज द ऑर्गन फॉर आपका कोएगुलेटिव कैस्केड, यकृत इज द ऑर्गन फॉर आपका बाइल, यकृत इज द ऑर्गन एज महासुरतस भी है। यकृत का बहुत सारा रोल है। हम सभी वी आर मेडिकोज, वी ऑल नो दैट। सो टिश्यू डैमेज जो है, हम टिश्यू डैमेज की बात कर रहे थे, ये डैमेज इन्फ्लेमेटरी डैमेज है। तो ये नहीं है कि वायु आ गया और सुखा दिया, नो, ये पित्त के कारण वो चीज सड़ गई। तो ये टिश्यू डैमेज LDH दिखाता है। एंड व्हाट इज फेरिटिन, हमने अभी 5 मिनट पहले बात किया कि इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल दैट कोएगुलेटिव कैस्केड। सो फाइब्रिन को डिजनरेट करते करते, सॉरी नॉट फेरिटिन, ये मैं थोड़ा सा रात को स्लाइड बनाते वक्त गड़बड़ी कर दिया। ये इसमें D-dimer इज द एंड प्रोडक्ट फॉर फाइब्रिन। व्हाट इज फेरिटिन? फेरिटिन इंडिकेट्स कि योर वायरस इज अटैकिंग ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड वायरस इज यूजिंग ऑक्सीजन, and that's why oxygen and hemoglobin they get separated. So the heme component gets damaged and वो heme component बढ़ा हुआ मिलता है, that is ferritin. और वो जो फाइब्रिन का जो एंड प्रोडक्ट है वो D-dimer है। और एक और इन्वेस्टिगेशन है एक्सरे चेस्ट। मैंने बात किया HRCT की, HRCT का हमने बात किया कि HRCT में है कि HRCT यानी कि वहां पे वो लोग भी मॉडर्न में भी वो लोग क्या कर रहे हैं, मॉडर्न में भी वो लोग लंग को महत्व दे रहे हैं। तो
HRCT है, एक्सरे है, ये इन्वेस्टिगेशंस है. सो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो इंटरप्रेट करते वक्त आई गेस द ओनली मैसेज इज कि इट्स नॉट वात कफज, कि जिसमें आप ढेर सारी उष्ण चीज़ें 2-4 मिला के दे दो, ऐसा पक्का नहीं है ये. इसमें पित्त का अनुबंध सीवियर है. सो when you are treating, when you are making some preventive formulation, or when you are treating the patient, yes, early presentation is वात कफज, उसको सर्दी है, उसको एक्यूट ज्वर है, उसको ये है खांसी है. अर्ली प्रेजेंटेशन इज नो डाउट वात कफज. लेकिन लैटर जैसे जैसे वो वायरस आपकी बॉडी में एक एक घुसेगा, कोएगुलेटिव कैस्केड इग्निट करेगा, बाकी पैथोलॉजी अल्वियोलर डैमेज करने लगेगा, तो वहाँ पे ध्यान में आने वाला धातु रक्त है. जेंटलमैन, इट इज़ रक्त एंड पित्त. तो ऐसा हमने नहीं करना चाहिए कि हम बस इसको कुछ तो वात कफक ने चीज़ें मिला दी और दे दिया, ऐसा पक्का नहीं होगा. लीवर का इतना इंपॉर्टेंट रोल है. गट का एक पब्लिकेशन मैंने 4 दिन पहले पढ़ा, BMJ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का, एक गट नाम के अलग से जर्नल है उनका. तो हाउ फैटी लिवर इज एसोसिएटेड विथ बैड प्रोग्नोसिस इन आपका ये कोविड. सो हाउ फैटी लिवर इज एसोसिएटेड, बहुत अच्छा पब्लिकेशन है. आप जस्ट गूगल करिए गट जो जर्नल है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का. सो उसमें फैटी लिवर एंड कोविड-19. सो ये वही बात है कि आपका लीवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन दीज आर द सिम्टम्स. तो फिर वो कैसे कैसे सन्निपात ज्वर में आए हैं, कौन से ग्रंथ का संदर्भ है. सो ये देखिए, बस इसमें मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि पित्तवर्धक भी ये सन्निपात में ये चीज़ आती है. इंक्रीज्ड वाट, ये देखिए प्रतिशय, ये देखिए डिमिनिश्ड कफ, मॉडरेट पित्त इंक्रीज्ड वात में भी है. तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वात कफज है. हेतु में हम इसको प्राधानिक हेतु कह सकेंगे इसको, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज मिनिमल इन मोस्ट ऑफ द केसेस. देन एक और क्लासिफिकेशन है आयुर्वेद में हेतुओं का. एक है उत्पादक हेतु और एक है व्यंजक हेतु. सो वो वायरस भले ही उत्पादक हेतु है, लेकिन व्यंजक हेतु तो आपके दोष ही है. सो दैट्स वाई हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्रोग्नोसिस केस के हिसाब से डिफर हो जाता है, क्योंकि प्रोग्नोसिस डिपेंड करेगा व्यंजक हेतुओं पे. सो आपके शरीर के धातु, आपके शरीर के दोष वो कैसे है, वो व्यंजक हेतु है, भले ही उत्पादक हेतु वायरस क्यों ना हो. सो वो हाथ धोना, वो मास्क पहनना, वो व्यंजक हेतु को के लिए है, लेकिन उत्पादक हेतु तो सॉरी वाइस वर्सा. सो व्यंजक हेतु तो आपके शरीर के दोष और धातु है, तो उनका ख्याल रखना हमारा ज़रूरी है. कैसे क्या रखेंगे वो चिकित्सा पार्ट में या प्रिवेंटिव चिकित्सा पार्ट में मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू पैथोफिजियोलॉजी ओनली. So to summarize, earlier presentation is Vata Kafaj, later is Vata Pitta, and at the end sepsis, multi-organ failure is involvement of Tritiya Rog Marga, that is Marmasthi Sandhi. These are the symptoms. और वो किस किस स्रोतस के है बस देखिए, प्राणवह, रसवह, मज्जावह के भी है, रक्तवह के है, पुरुषवह के है, अन्नवह के है. So these are the symptoms. This is the pathogenesis, जिसमें शुरुआत ज्वर से होगी, फिर प्राणवह स्रोतस अफेक्ट होगा एंड रक्तवह स्रोतस भी अफेक्ट होगा. कोएगुलोपैथीज होगी, रक्त का उपद्रव ज्वर है. फैटल कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज प्राण और रक्त इसमें इन्वॉल्व है. एम्ब्रियोलॉजिकली फुफ्फुस रक्त से उत्पन्न हुए हैं. महास्रोतस का ऑब्वियसली रोल आएगा. तृतीय रोग मार्ग इसमें अफेक्ट होगा. हिमैचुरिया वगैरह वगैरह, ये आगे का प्रेजेंटेशन तृतीय रोग मार्ग में चला गया. इंटरेस्टिंग चीज़ बस ये लास्ट की 4 लाइनें बस पढ़ लीजिएगा. Interestingly, hiccup, dyspnea, cough and the complications in vital organ are symptoms when pathogenesis invades majja dhatu according to Charak. चरकाचार्य कहते हैं मज्जागत ज्वर के लक्षण क्या कहते हैं? श्वास, हिक्कप उचकी, कफ खांसी, जब ज्वर मज्जागत हो जाता है. एंड सुश्रुताचार्य क्या कहते हैं? बस लास्ट की 2 लाइनें, complication in vitals, these are the symptoms of मज्जागत ज्वर. सो ये आगे जाके धातुओं को इन्वेड कर रहा है, तो संप्राप्ति तीसरे रोग मार्ग में चली गई. सो इस हिसाब से ये अगेन इंपॉर्टेंट मैं मैसेज देना चाहूँगा कि ये शुक्र धातु का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि न्यूमोसाइट 2 अफेक्ट हो रही है. एंड लास्ट स्लाइड, दिस इज पोस्ट कोविड. दिस इज द पब्लिकेशन इन JAMA नेटवर्क.
सो पोस्ट कोविड जो अभी पेशेंट्स आने लगे हैं, मैं भी ऑलरेडी पोस्ट कोविड देख चुका हूँ, कोविड देख चुका हूँ। पुणे में, मुंबई में सिनेरियो अच्छा है। लोग जो होम आइसोलेशन है वो लोग आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से मेडिसिन लेते हैं, या फिर भले ही एडमिटेड क्यों ना हो, प्रोग्नोसिस ज़्यादा बैड ना हो, इसके लिए टाइम पे अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से जाके दवाई लेने का ट्रेंड है। पुणे में, मुंबई में अच्छी बात है, तो लोग ले रहे हैं। सो मैं भी पोस्ट कोविड के प्रेजेंटेशन देख चुका हूँ। पेशेंट कहता है कि 7-8 सेंटेंसेस या फिर इवन 4-5 सेंटेंसेस कंटिन्यूसली नहीं बोल सकते। someone was working in banking sector and the patient joined after 18 days and then he complained that yes मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो यस, तो फटिग है बहुत सारा। तो ये जामा का पब्लिकेशन है जिसमें उन्होंने पोस्ट कोविड में कोविड के कौन कौन से सिम्टम्स किस क्रोनोलॉजी में रहते हैं सबसे ज़्यादा तीव्रता के हिसाब से वो दिया है। तो इसमें है कि फटिग सबसे ज़्यादा रहता है। सो क्या है ज्वर के पश्चात का विचार आयुर्वेद ने कितना सुंदर किया है रे। अपने पास वसंत कल्प है, एंड देन अपने पास चरक संहिता। पढ़िए यूजी पीजी स्टूडेंट्स, ये लेक्चर खत्म होने के बाद चरक संहिता का आखिरी 2 पन्ने पढ़िए ज्वर चिकित्सा के। यू गेट पुनरावर्तक ज्वर कषाय, कि ज्वर आके जा चुका है, अब ये रिलैप्स न हो, इसके लिए पर्टिकुलरली फॉर्मुलेशन देके रखा है, पुनरावर्तक ज्वर। सो पोस्ट कोविड में देना क्या है, चरकाचार्य ने दे चुके हैं रे ऑलरेडी। वसंत कल्पना उसी के लिए है। सो फटिग है वो फीवर से एसोसिएटेड, डिस्निया रह रहा है, तो ये फाइब्रोसिस से रिलेटेड है। तो वासा जैसी चीज़, यष्टि जैसी चीज़, वासा का घृत इस्तेमाल करते हैं। जॉइंट पेन रह रहा है क्योंकि चिकनगुनिया जैसा, क्योंकि इसमें मसल भी अफेक्ट होगा, इसमें बाकी टिश्यूज़ का भी ये रोल आएगा। मायल्जिया, आपने अगर कोविड का पेशेंट देखा है तो वो सीवियर बॉडी एक बताता है। टिपिकली बहुत सीवियर मायल्जिया होता है। चेस्ट पेन भी थोड़ा बहुत रह रहा है, कफ रह रहा है, और फिर बाकी के सिम्टम्स मिनिमली रह रहे हैं। तो ये पोस्ट कोविड का विचार हमारी संहिताओं में ऑलरेडी किया है। तो इस हिसाब कि हमने यहाँ पे ये समझने का प्रयास किया कि कैसे क्या कोविड को समझना चाहिए। सो कोविड को कैसे क्या समझेंगे, इसमें हमने एक तो सबसे पहली चीज हमने देखा कि ये तो इन्फेक्शियस डिसीज है। सो कैसे आयुर्वेद डिफरेंट है, आयुर्वेद होस्ट की ज़्यादा सोचता है। आयुर्वेद वहाँ पे इसको समझने के बजाय, इन्फेक्शन को ज़्यादा महत्व देने के बजाय आयुर्वेद महत्व देता है होस्ट को। सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखी। इन्फेक्शियस डिसीजेस आयुर्वेद में कहाँ कहाँ ढूंढने चाहिए, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि लंग पैथोलॉजी के स्टेप्स क्या क्या है, उसमें किस हिसाब से लंग में एक स्टेप हो जाती है। वो नोज़ में आ गया, फिर यूआरटीआई में आ गया, फिर एलआरटीआई में आ गया, फिर वायरेमिया हो गया। फिर हमने उसका आयुर्वेदिक कंपोनेंट समझने का प्रयास किया, कौन से लंग टिश्यूज़ डैमेज होते हैं वो समझा। फिर हमने हेतु को समझा, फिर हमने संप्राप्ति थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया, एंड फिर हमने मार्कर्स जो इसके हैं उनको इंटरप्रेट करने का प्रयास किया, एंड फिर एट द एंड हमने कोविड के पोस्ट कोविड की बात की। सो आई गेस दिस इज़ ओके। ऑलरेडी 12:15 हो चुके हैं। मेरे बाद डॉक्टर अनिकेत शिलवंत सर गुजरात से ज्वाइन होंगे हमारे लिए इम्यून फिजियोलॉजी पे बात करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच दीपा काळे मैडम एंड हर टीम, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर, YMT Ayurved College Kharghar, and thank you all of you for joining this and listening this. Thank you. Thank you. Yes, Deepa Kale ma'am, here I can see her in comments. Thank you Dr. Prasad for presenting lecture. Thank you. So I would like to conclude, and shortly Dr. Aniket Shilwant will be live. Thank you.